the recent budget discussion about three important telescopes. तो it helps scientists analyze their structure and behavior और उससे हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा जो स्पेस डिस्कवरीज है, वो काफ़ी और बेहतर बन जाती हैं. नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप same as in Ladakh. Hello and welcome back to Prep Alpine, the next generation UPSC institution. We are continuing with our high yield UPSC series where we discuss some of the most important topics that have the maximum probability of being asked in your UPSC exam. ये टॉपिक्स आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं देंगे बल्कि प्रीलिम्स और मेंस में आने वाली जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं उन पर एक कमांड लाने में आपकी हेल्प करेंगे. और आज का टॉपिक ऐसा ही एक टॉपिक है जो हमारे साइंस और टेक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और साइंस और टेक आपको पता है कि यूपीएससी के लिए कितना क्रिटिकल हो जाता है, लोगों को इसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. So the topic for today is the recent budget discussion about three important telescopes. दो हमको नए बनाने हैं और एक टेलीस्कोप है जिसका अपग्रेडेशन होने वाला है. तो इंडिया की जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है, अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की, तो एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स. और इसको जब हम स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी दिस, तो इट हेल्प्स साइंटिस्ट्स एनालाइज देयर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर और उससे हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा जो स्पेस डिस्कवरीज है, वो काफ़ी और बेहतर बन जाती हैं. So talking about the recent budget announcements, so there have been approvals for three new things. Firstly, there will be a National Large Solar Telescope (NLST) which will be set up in Ladakh. Secondly, we have National Large Optical Near Infrared Telescope, same as in Ladakh. And thirdly, the Himalayan Chandra Telescope, which is located in Ladakh, that will be upgraded. So now understanding why is Ladakh so important? लद्दाख को ही क्यों चूज किया जा रहा है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन के लिए, क्यों आइडियल है लद्दाख हमारी एस्ट्रोनॉमी के लिए? तो सबसे पहले तो वो बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर सिचुएटेड है. तो द थिनर द एटमॉस्फेयर, द लेस इज द डिस्टॉर्शन. सेकेंडली, इट हैज़ अ वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. तो जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतने ज़्यादा क्लियर स्काईज जो है वो आपको दिखेंगे. बादल कम आएंगे तो मोस्टली थ्रू आउट द ईयर आपको क्लियर स्काईज दिखेंगे. And lastly, there is minimal light pollution, and this is one of the reason which is why the dark sky reserve of India, the first dark sky reserve, has also been set up in Hanle, Ladakh. So now it is clear that why is Ladakh chosen as the location of these three telescopes. Now let us understand what are these three telescopes and what are their technical features. So the first one is the National Large Solar Telescope. So as the name suggests, ये सोलर यानी सन की स्टडी के लिए इसको बनाया गया है. अगर इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो 2 मीटर अपर्चर, दैट इज द डायमीटर ऑफ द मेन मिरर इज 2 मीटर, एंड लार्जर द अपर्चर, the more is the probability of collecting light, and the more light it collects means better resolution is provided. Where it will be located? So it will be located in Merak near Pangong Tso Lake in Ladakh, and it operates in visible and near infrared wavelengths. What are the objectives of this National Large Solar Telescope? So it will study solar magnetism, it will observe solar flares and coronal mass ejections, and it will improve the understanding of the space weather. So be it solar storms or anything related to solar activity, all will be studied from ground by this National Large Solar Telescope. तो यहाँ से आपको एक और चीज ध्यान में आ रही होगी, जब हम सोलर वेदर की बात करते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस की बात करते हैं, विच इज द आदित्य L1 मिशन, जो कि हमारा स्पेस मिशन है, सन मिशन है, जो इसरो के द्वारा भेजा गया है. और ये जो हमारा नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप होने वाला है, दिस विल बी इन कॉम्प्लीमेंट्री टू द आदित्य L1. तो इससे अब हमको सन का जो एक्टिविटी है उसको समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा. दे फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव सोलर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, एंड दिस विल strengthen our scientific research and space security. It will protect our satellites,
GPS systems, communication systems, as well as power grids from the unusual activity of the sun. नेक्स्ट वी हैव द नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ये जो है इसमें सेगमेंटेड मिरर डिजाइन किया गया है, यानी कि बहुत बड़ा एक मिरर बनाने के बजाय 90 स्मॉल मिरर्स को कंबाइन किया गया है, जिससे कि वो एक सिंगल मिरर की तरह एक्ट करेंगे, जिसका कि डायमीटर होगा 13.7 मीटर। और क्योंकि एक बड़ा मिरर जो है वो बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है ऑफ कंबाइनिंग मेनी स्मॉल मिरर्स, वो यहाँ पर यूज किया गया है। एंड दिस सॉल्व्स द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। What it will observe, तो it will observe extremely faint and distant objects, जो बहुत दूर के फिनोमिना होते हैं। तो बहुत दूर के फिनोमिना में हमको एक्सोप्लैनेट्स नजर आते हैं, हमको लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार नजर आता है, स्टेलर इवोल्यूशन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स नजर आते हैं, और गैलेक्सी फॉर्मेशन, और हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ था, ये सारी चीजें जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं इस नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप के द्वारा। This also has a global significance because such kind of telescope was not present in Asia till now, and this fills an observational and institutional gap in Asia. Together with Europe and America, it will form a combined continuous sky coverage. It will provide a continuous sky coverage, and above all, it will elevate India's position in the global astronomical collaborations. So, India को अब as a leader देखा जाएगा, rather than a simple participator. We are seen as a leader. We will be seen as a leader in terms of space astronomy. Talking about the last telescope, the last decision that has been taken in the budget of 2026-27, that is the upgradation of the Himalayan telescope, which is located at Ladakh as well. So this will be in operation for about 25 years. Originally इसको 2 मीटर के मिरर के साथ इक्विप किया गया था, जिसको अब 3.7 मीटर का सेगमेंटेड मिरर सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। एंड जाहिर सी बात है कि अगर डायमीटर बढ़ेगा तो उसका लाइट गैदरिंग कैपेसिटी और रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ेगा। बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ये ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिएंट का मतलब हो गया जो शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना होता है, जो छोटे टाइम के लिए होता है, जैसे गामा रे बर्स्ट हो गए, सडन स्टेलर एक्सप्लोजन्स हो गए, वेरिएबल स्टार्स हो गए, उन सबको ऑब्जर्व करने में ये हेल्प करेगा। टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, सो ऑब्वियसली इट विल एडवांस द फ्रंटियर साइंस फॉर इंडिया, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब पर हम रिसर्च कर सकते हैं यूजिंग ऑल दीज 3 टेलीस्कोप्स। हमारा स्पेस सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, हमको सोलर स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे, हमारी सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम्स, इन सबको सेफगार्ड करने में हेल्प करेंगे। एंड ऑब्वियसली देयर आर टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर्स, यानी इसके साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट हमको और सेक्टर्स पे नजर आएगा, जैसे प्रेसिजन ऑप्टिक्स, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन, क्रायोजेनिक सिस्टम्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग. Apart from this, India is also a part of many international collaborations, including the LIGO India as well as the Square Kilometer Array, which is involved in gravitational wave detection and radio astronomy. But as usual, this also comes with its own set of challenges. तो सबसे पहले तो हमारी logistical difficulties हैं, क्योंकि लद्दाख की terrain ऐसी है, लद्दाख का weather ऐसा है। दूसरा, हमारे पास फाइनेंशियल और टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इंडिया इज शॉर्ट ऑन कैपिटल एट प्रेजेंट। और इसका जो जेस्टेशन पीरियड है, जब ये रिजल्ट देगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है। एंड लास्टली, देर आर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स. वी नीड हाईली ट्रेन्ड साइंटिस्ट एंड engineers to maintain these telescopes. So if these challenges are met, if these challenges are resolved, only then can we say that the successful implementation can be done. This obviously is a transformative phase in India's scientific infrastructure, but the challenges must be resolved if India wants to position itself as a leader in the phase of optical astronomy and solar astronomy. We need to strengthen our technological capability. We need to provide space security, and we must collaborate internationally so that these instruments just not act as research instruments, but in future, in the long run, act as symbols of India's scientific ambition and strategic foresight.
So that's it for this video. If you want more such content, please subscribe to the channel and keep watching Prep Alpine. Thank you.